Hello students, so in the previous lecture we were talking about different types of genes, okay? We did talk about the intergenic interactions. In this lecture I would be talking about the chromosomal theory of inheritance. ठीक है, तो आज के लेक्चर में chromosomal theory of inheritance and we'll talk about the linkage as well. So chromosomal theory of inheritance. Okay, so the characters, जो भी physical character है, that is going to be controlled by the gene. ठीक है, this statement was given by Mendel. But the presence of gene on the chromosome, gene characters देता है characters are given by genes. ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, that was given by Mendel. That was given by Mendel. But the location of the genes on the chromosome, okay, was given by Sutton and Boveri. Genes are located on chromosome. ये जो statement है, this was given by Sutton and Boveri. ठीक है, so see this two are very important statements. You shouldn't be confused कि यार मेंडल की रिसर्च के हिसाब से मेंडल ने बोला था कि कैरेक्टर्स आर गिवन बाय जीन्स. ओके, उस टाइम पे मेंडल ने जीन्स को टर्म दिया था यूनिट फैक्टर्स. ही टर्म देम एज अ यूनिट फैक्टर्स. ठीक है, एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. दिस वाज प्रूव्ड बाय Sutton and Boveri. ठीक है, so now chromosomes are carriers of genes. Chromosomes are carrier of genes and they segregate the chromosomes and they segregate and assort independently. Segregate and assort independently during transmission from one generation to another. ठीक है, so when the chromosomes are being transmitted from one generation to another, that means जो genes located है chromosomes के ऊपर, they are also going to be transmitted. They are also going to be segregated and assorted independently during the transmission. ठीक है, because आपको पता होना चाहिए कि अपने पास we have 46 chromosomes. ठीक है, when the gametes are being formed, the number of the chromosome reduces to half. That is going to be 23. It reduces to half. That is going to be 23. ठीक है, so half of the gene, because यहाँ पे भी जीन जो यूनिट फैक्टर्स है, यूनिट फैक्टर्स भी पैर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पैर में होते हैं. ठीक है, तो जब क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं, हाफ में रिड्यूस हो रहे हैं, तो जीन्स भी क्या हो जाएगी, जीन्स आर आल्सो गोइंग टू स्प्लिट अपार्ट. ठीक है, clear है. So the characters are given by gene. This was given by Mendel, while the genes are located on the chromosome. It was given by Sutton and Boveri. ठीक है, chromosomes are carriers of genes and they segregate and assort independently during transmission from one generation to another. ठीक है, so chromosome के साथ genes भी क्या हो जाएंगे, they are also going to be separated. They are also going to be reduced to half. ठीक है, now similarities between genes and chromosomes अगर देखें,
सिमिलैरिटीज बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। आई होप अभी तो आप लोग को पता है कि जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। Similarities between genes and chromosomes। ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी जो आपको पता है दैट इज दोनों की दोनों क्या होते हैं, बोथ ऑफ देम आर इन पेयर्ड कंडीशन। क्रोमोसोम्स एंड जीन दे अराइज इन पेयर्ड कंडीशन, क्योंकि एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा, अलील, अ वैरायटी ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट in paired condition. Both of them means I'm talking about the genes and the chromosome, they exist in the paired condition. During the formation of the gamete, during gamete formation, genes are reduced to half। ठीक है, या फिर I can also put it as only one unit factor। जीन्स को अपन ने क्या टर्म दिया था, मेंडल ने क्या टर्म दिया था, यूनिट फैक्टर। ओनली वन यूनिट फैक्टर इज प्रेजेंट इन गैमीट। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द क्रोमोसोम। आउट ऑफ द टू क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट out of two chromosome, only one chromosome is present in gamete। ठीक है, सो जैसे अपन ने बोला कि यार दोनों ही पैड कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, क्रोमोसोम एंड द जीन्स। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है, दो में से एक ही गैमेट में जाता है। दो क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम जाएगा, दो अलील्स है तो एक अलील जाएगा। पता है ना आपको, आपने लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब गैमेट बनेगा तो एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे में स्मॉल टी जाएगा। ये बात आपने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रखी है। तो ये दोनों क्या है, दिस आर द अलील्स, they are in paired condition। Clear है? So during gamete formation, genes are reduced to half or only one unit factor is present in gamete। और क्रोमोसोम की बात करें, so out of the two chromosome in a set, homologous chromosomes होते हैं ना, so out of the two chromosome in a set, only one chromosome is present in gamete। ठीक है, after fertilization of gametes, the zygote again reach the paired condition। So third point, after the fertilization of gametes, after the fertilization of gametes, zygote after the fertilization of gametes again paired condition is obtained in zygote। ठीक है, सो जैसे कि कैपिटल टी आया था फादर के पास से, स्मॉल टी आया मदर के पास से, तो ये तो दोनों हाफ हाफ है। जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में फिर से साथ में आ जाएंगे, तो पेड कंडीशन आ गई फिर से।
ठीक है. सो द आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स अगेन पेयर्ड कंडीशन इज ऑब्टेन्ड इन द जाइगोट स्टेज. ठीक है. इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फिर वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फिर वेरिफिकेशन फॉर क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, फॉर क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. was given by Morgan, was given by Morgan. ठीक है. So experimental proof for verification of chromosome theory of inheritance was given by Morgan. And what was the subject? Morgan ने कौन सी चीज के ऊपर रिसर्च किया टू गेट द प्रूफ और द वेरिफिकेशन फॉर क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. याद रखना है कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर मॉर्गन ने स्टडी करी और प्रूव किया कि जो क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज वेरी वेरी करेक्ट. तो यहां पे आपको याद रखना है फ्रूट फ्लाई को. मॉर्गन worked on, the scientific name is Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. ठीक है. That is a scientific name of fruit fly, Drosophila melanogaster. ठीक है. Normally it is termed as I put it मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं. So scientific name is Drosophila melanogaster and normally it is termed as fruit fly बोलते हैं उसे. It is also termed as the मैंगो फ्लाई, बनाना फ्लाई भी कहा जाता है. ठीक है. साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और जनरल टर्म्स में फ्रूट फ्लाई, मैंगो फ्लाई, बनाना फ्लाई भी उसे कहा जाता है. ठीक है. नाउ व्हाई बनाना, व्हाई मैंगो? ठीक है. इनके ऊपर ज्यादा क्यों देखने को मिलेगा फ्रूट फ्लाई? द रीजन इज द मैंगो एंड बनानास दे आर रिच इन ऑक्सीन. They are rich in oxine, high content of oxine. Oxine आपको पता है it's a phytohormone. ठीक है. So high content of oxine की वजह से yeast cell का प्रोडक्शन, growth of yeast cell is high. yeast cell जो है उसका नंबर, उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन. एंड जो फ्रूट फ्लाई है इट फीड्स ऑन yeast cell. ठीक है. तो फ्रूट फ्लाई को यीस्ट सेल काफी पसंद है. और बनाना और मैंगो में क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल इज हाई. ठीक है. जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाई जो क्या होती है इट फीड्स ऑन यीस्ट सेल दैट इज प्रेजेंट इन द मैंगो एंड बनाना. तो आपको मैंगो और बनाने के ऊपर फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ अ लॉट ऑफ इंटेंसिव स्टडीज have been done on Drosophila melanogaster. काफी ज्यादा स्टडीज करी है साइंटिस्ट लोगों ने. मॉर्गन ने तो करी है. मॉर्गन के अलावा आज के टाइम पीरियड में भी अगर आप देखें so there's a lot of intensive studies carried out on Drosophila. Okay. And a lot of
principles, a lot of practical has been performed, and lot of theories have been proved with the help of the Drosophila. ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ Drosophila melanogaster. ठीक है, Drosophila melanogaster. ठीक है, that is fruit fly. So a lot of excessive work have been done on the Drosophila, and a lot of theories have been proved, okay, with the help of Drosophila. So that is the reason Drosophila is also termed as the jackpot of genetics. Drosophila is also termed as jackpot of genetics. ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज intensive studies and lot of theories have been proved. With the help of the fruit fly or the mango fly or the banana fly or the Drosophila melanogaster या फिर the jackpot of genetics. ठीक है, a lot of work has been done by Morgan. Morgan ने काफी ज्यादा intensive work किया in the field of genetics on the fruit fly as well. ठीक है, इसीलिए Morgan is also known as the father of genetics and father of experimental genetics. Morgan is known as the father of experimental genetics. ठीक है, so father of genetics तो आपको पता है, that is Mendel. ठीक है, and father of experimental genetics, that is Morgan. ठीक है, so now the question arises, why did Mendel select fruit fly? There are a lot of flies available. तो मेंडल ने फ्रूट फ्लाई को क्यों स्टडी किया? टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस या फिर टू अंडरस्टैंड एनी अदर कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स. ओके, सो वी हैव सम रीजंस फॉर इट. व्हाई डिड मॉर्गन सिलेक्ट फ्रूट फ्लाई? Why did Morgan select fruit fly? So the answer is, they can be easily grown on a synthetic medium. Easily grown, या फिर we can term it as it can be easily cultured. Okay, easily grown or cultured on a synthetic medium. Easily grown or cultured on a synthetic medium in a lab. लैब में उसको ग्रो कर सकते हो, आप कल्चर कर सकते हो. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट फ्रूट फ्लाई इज दैट इट कैन बी इजीली ग्रोन और कल्चर्ड इन अ लैब. आप लैब में उसे ग्रो कर सकते हो बाय गिविंग सिंथेटिक मीडियम. ठीक है, दूसरी बात, shorter lifespan, that is only 2 weeks. Shorter lifespan, that is only 2 weeks. ठीक है, तीसरा point, Drosophila has, I'll put it as fruit fly has many hereditary fruit fly has
many hereditary variations fruit fly has many hereditary variations which can be easily seen under low power microscope. Seen under low power माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप भी आपको कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप लो पावर माइक्रोस्कोप में भी जो वेरिएशंस है हेरिडिटरी मटेरियल के अंदर दैट कैन बी ऑब्जर्व. सो दिस मेक्स थिंग्स वेरी सिंपल. ठीक है, क्योंकि इक्विपमेंट भी आपको ज्यादा हाई फाई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई हैज मेनी हेरिडिटरी वेरिएशंस व्हिच कैन बी इजीली सीन अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप. ठीक है, नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, single mating produces 100 of new offsprings. Okay, single mating में the outcome is 100 new offsprings in a single mating. ठीक है, and there is a clear differentiation. One more important point is there is a clear differentiation between male and female fruit fly. I'll put it up. मैं ऊपर लिखता हूँ. So ये points clear है. Easily grown or cultured on a synthetic medium in a lab. Shorter lifespan, that is 2 weeks. Fruit fly has many hereditary variations which can be easily seen under a low power microscope, and single mating produces 100 of new offsprings. ठीक है. Clear differentiation between male and female Drosophila. ये भी एक अच्छी बात होगी ना कि आप easily differentiate कर सकते हो. There is a clear differentiation between male and female fruit fly. ठीक है, so when you are able to differentiate easily between male and female, things becomes more easier from the practical point of view. ठीक है, तो जो females होती है, the females are bigger in size. ठीक है, and they have a egg laying structure. Present होता है इन females के पास, and that egg laying structure is known as ovipositor. Ovipositor. ठीक है, और मेल्स की अगर बात करते हैं तो मेल्स आर स्मॉलर इन साइज. They are, ठीक है, तो साइज से ही डिफरेंशिएट कर लेंगे कि यार मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है. बट अपार्ट फ्रॉम साइज द फीमेल पोजेसेस अ स्पेशलाइज्ड एग लेइंग स्ट्रक्चर्स जो इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं, कॉकरोच में देखने को मिलते हैं. ओके, दैट इज ओविपोसिटर. ठीक है, क्लियर है. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ओविपोसिटर. एंड लास्ट पॉइंट, there is small number of morphologically distinct chromosome. Small number of morphologically distinct chromosome. ठीक है, क्लियर है.
जो टोटल क्रोमोसोम काउंट होता है ड्रोसोफिला का, आपको याद रखना, द टोटल काउंट इज 2n equals to 8. That means gamete में कितना होगा? So gamete is going to be 4. n equals to 4. ठीक है? So this was some of the reason why Mendel select fruit fly and a lot of other scientists they also use fruit fly to prove various concepts of genetics. ठीक है? So there is a clear differentiation male female के बीच में and small number of morphologically distinct chromosome. काफी कम नंबर होता है क्रोमोसोम का, that is total number of 8. Gamete में तो आधे ही आएंगे, that is going to be 4. ठीक है? Okay, so now moving ahead, let's talk about linkage. ठीक है? लिंकेज नाम से ही आपको पता चल रहा है, लिंक, लिंक होना. Now see, if there's a chromosome, let's say there's a chromosome, this is the chromosome and it has a particular genes A, B, C, D, E, F, G. ठीक है? So these genes are closely related to each other. So जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर आपको पता है ना क्या होता है, मियोसिस में होता है. जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो दो जीन्स जो पास पास में, उनके चांसेस साथ में रहने के ज्यादा रहेंगे. द जीन्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड with one another at the time of crossing over, the chances of getting together in the recombinant chromosome is more. Take it? Genes present on the same chromosome are known as genes present on the same chromosome is known as linked genes. क्या कहा जाता है उन्हें? Those are termed as linked genes, and linked genes have the tendency, linked genes have the tendency to stay together have the tendency to stay together during transmission. During transmission. That means transmission is crossing over के बाद का process. During transmission from one generation to the another generation. From one generation to another generation. ठीक है? So genes present on the same chromosome are known as linked genes, or we can also put it as the closely associated genes. Okay, they are termed as linked genes. Linked genes have the tendency to stay together during transmission या फिर during the process of crossing over from one generation to another generation. ठीक है? So these are termed as the linked genes. समझ में आ रहा है? So if the genes are associated close to each other, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, मियोसिस के टाइप पे गैमेट्स बनेंगे, तो वो जो जीन्स एक साथ में लोकेटेड है वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, साथ में ही नए क्रोमोसोम में जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम में जाएंगे, बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड. Batson and Punnett first talked about linkage during their work on sweet pea plant. Batson and Punnett first talked about
talked about linkage during their work on sweet pea plant. Okay, so they did talk about linkage ऐसा कुछ है during their work on the sweet pea plant or Bassem first talked about linkage while studying sweet pea plant. While studying sweet pea plant. ठीक है? Clear है? Scientific name is Lathyrus odoratus. Scientific name आपको sweet pea plant का याद हो जाना चाहिए. That is Lathyrus odoratus. ठीक है? Now they simply talked about the thing कि यार ऐसा हो सकता है. But mechanism of linkage was explained by mechanism of linkage was explained by Morgan. ठीक है? तो see, these are two different things. बैटसन एंड पुनेट ने सिर्फ बात करी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है लिंकेज जैसा, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट. सो नीट की जब अपन तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको याद रखनी है कि किसने बात करी थी. सिर्फ तो बात करी थी बैटसन एंड पुनेट ने, बट किसने प्रूव किया? सो इट वाज प्रूव्ड बाय मॉर्गन. और मॉर्गन ने कौन सी चीज को यूज किया होगा टू प्रूव इट? सो मॉर्गन यूज्ड fruit fly. Morgan used fruit fly. ठीक है? Simple and easy. So let's move ahead. Let's talk about the chromosomal theory of theory of linkage. Chromosomal theory of linkage. Of linkage. It was given by Morgan and Castle. The theory was given by Morgan and Castle, two scientists. ठीक है? Now genes present on the same chromosome, they are linked genes. Genes on same chromosome are linked genes. ठीक है? And genes are present in linear fashion on chromosome. Genes are present in linear fashion on chromosome. ठीक है? ठीक है? Linked genes can be separated with the help of crossing over as well. Can be separated
ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम द चांसेस आर लेस, बट यस देयर इज अ चांस कि जब लिंक्ड जीन्स भी क्या हो सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड. ठीक है, let's take for an example, we have this homologous chromosomes. This is one and this is the another pair of that chromosome, and यहाँ पे I'll put A B C D E F, और यहाँ पे मैं लेता हूँ A small b small c D E F. ठीक है, सो लेट्स से अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये सब लिंक्ड जीन्स है, और अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ याले सेगमेंट पे, ठीक है, याले सेगमेंट के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होगा, A B C D E F, A B C D कैपिटल E एंड स्मॉल f. ठीक है, मतलब यहां पे लिंक्ड जीन्स, ये सब जीन्स क्लोजली एसोसिएटेड थे, बट क्रॉसिंग ओवर अगर इस एंड पे हुआ तो E यहां पे आ गया और कैपिटल E यहां पे आ गया और स्मॉल e इधर चला गया. तो यस, लिंक्ड जीन्स के केस में भी अगर क्रॉसिंग ओवर एक पर्टिकुलर पॉइंट से हो तो लिंक्ड जीन्स भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दे कैन बी सेपरेटेड. ठीक है, क्लियर है? So now I'll talk about the linkage groups. So linkage group क्या होता है? तो ये जो मैंने क्रोमोसोम दिखाया, उस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स एसोसिएटेड थे, जो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अपन ने दिखाया, ठीक है, जो मैंने इस तरीके से भी दिखाया कि ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, ठीक है, और मैंने बोला कि इसके ऊपर A B C D E F ये जीन्स है. तो ये जो क्रोमोसोम पूरा है जिसके ऊपर ये जीन्स है, ये पूरा कंप्राइज करके इट फॉर्म्स अ लिंकेज ग्रुप. ये पूरा एक क्रोमोसोम जो है विथ ऑल दिस जीन्स, ऑल दिस लिंक्ड जीन्स, इट इज टर्म्ड एज अ लिंकेज ग्रुप. Whole chromosome with all the linked genes is termed as linkage group. पूरा के पूरा क्रोमोसोम जो है इट वुड बी टर्म्ड एज अ लिंकेज ग्रुप. ठीक है, so all these genes, all these linked genes present on a chromosome, they are going to be constituting a linkage group. So there are questions being asked कि यार humans के पास कितने linkage groups available है? How many linkage groups are present in the humans? How many linkage groups are present in humans? ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो टोटल नंबर है क्रोमोसोम का, उसके हाफ नंबर को कंसिडर किया जाएगा एज द लिंकेज ग्रुप. ठीक है, तो टोटल नंबर कितना है ह्यूमंस का? टोटल नंबर जो है क्रोमोसोम का वो कितना है? 46 है. ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप वो कितने नंबर से कंप्राइज करेगा? सो द लिंकेज ग्रुप इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ हाफ ऑफ इट, दैट इज 23. तो आप बोलोगे ह्यूमंस के पास 23 लिंकेज ग्रुप्स है. कितने लिंकेज ग्रुप्स है? 23 लिंकेज ग्रुप्स, दैट इज द होल क्रोमोसोम विथ ऑल द लिंक्ड जीन्स एसोसिएटेड और ग्रुप टुगेदर इज टर्म्ड एज द लिंकेज ग्रुप. सो आपको सिंपल इतना ही करना है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कोई भी ऑर्गेनिज्म में, उसका हाफ नंबर कंसिडर किया जाएगा एज द लिंकेज ग्रुप. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट ड्रोसोफिला,
ओके, ड्रोसोफिला में भी कितना बताया था मैंने आपको, टोटल नंबर 8 बताया था। तो ड्रोसोफिला के पास लिंकेज ग्रुप्स कितने हो गए, तो 8 का हाफ, जो हैप्लॉइड नंबर अपन कंसिडर करते हैं 4, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट पीसम सेटाइवम पी प्लांट, ठीक है, अगर पीसम की बात करते हैं तो पीसम के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, तो टोटल नंबर इज 14। तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा पीसम के पास, सो द लिंकेज ग्रुप इज गोइंग टू बी 7, ठीक है। और अगर इफ यू टॉक अबाउट राइस, अगर राइस की बात करते हैं तो राइस का पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, सो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन राइस इज 24। तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 12 हाफ, ठीक है, समझ में आ गया। सो ह्यूमन में, अच्छा ह्यूमन में मैं और थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि ये जो है 23 नंबर है, दैट इज फॉर दी फीमेल्स, दैट इज फॉर दी फीमेल्स। मेल्स में द नंबर इज 24, लिंकेज ग्रुप का नंबर है 24, क्यों मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ड्रोसोफिला में टोटल काउंट है 8, ठीक है, तो उसका लिंकेज ग्रुप होगा 4। पीसम में टोटल काउंट है 14, तो उसका लिंकेज ग्रुप होगा 7। और राइस में टोटल काउंट है 24, तो उसका लिंकेज ग्रुप होगा 12, ठीक है, समझ में आ गया। सो क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द लिंक्ड जीन्स टुगेदर कंप्राइजेस अ लिंकेज ग्रुप, ठीक है। अब ह्यूमंस की मैं बात कर रहा था, तो मैंने बोला फीमेल्स में 23 है और मेल्स में 24 है, किस तरीके से, सो फीमेल्स की अगर बात करते हैं, सो क्रोमोसोम काउंट इज 22 प्लस XX, 22 प्लस XX, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो आई टेक इट एज 1। तो टोटल कितना हो गया, 23 हो गया टोटल, ठीक है। ये हैप्लॉइड नंबर मैंने लिखा है, अगर आप डिप्लॉइड नंबर लिखना चाहोगे तो यहां पे कितना लिखोगे, दिस इज गोइंग टू 44 प्लस XX, दैट इज 45, 46। मैं हैप्लॉइड लेके चल रहा हूं तो इसमें 22 लिखा है, सो 22 प्लस 1, दोनों एक ही है, एक ही टाइप के जीन्स हो गए ना, दोनों X है तो दोनों के पास एक ही टाइप के जीन्स हो गए। बट जब मेल की बात करते हैं, जब मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या लिखेगा, 22 प्लस XY, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हो गए, ओके। सो दो अलग अलग क्रोमोसोम मतलब दिस इज 1, this will be taken as another 1, because इसके पास जो जीन्स हो गए वो अलग है, इसके पास जीन्स हो गए वो अलग है, इन दोनों के जीन्स तो सेम थे इसलिए इनको 1 कंसिडर किया गया था। इन दोनों को एक एक कंसिडर करूंगा तो 22 प्लस 1, 23 प्लस 1, दैट इज 24। सो इन केस ऑफ मेल देयर आर 24 linkage groups and in case of females that is 23 linkage group, because males have Y chromosome as well, males के पास Y chromosome होता है इसलिए, ठीक है। So this was all about the theory of what do you call the chromosomal theory of linkage and the chromosomal theory of inheritance, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बोले कि यार कौन सा स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने प्लेस किया था और कौन सा साइंटिस्ट किस काम के लिए इन्वॉल्व था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट जरा सा भी चेंज कर दोगे तो साइंटिस्ट का नेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपर्ली, आप अच्छे से लेक्चर्स को देख रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो। जब भी आपकी नोट्स बन जाती है लेक्चर को देखने के बाद तो आपको उन नोट्स को मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड and talk about the other topic, ठीक है। चलो बाय बाय।